Hello everyone, welcome to GPSC Buddy. તો આજનો આપણો જે સેશન છે we are going to conduct this special session જે તમને આવનારી ACF Assistant Conservator of Forest ની એક્ઝામમાં યુઝફુલ થશે. Okay, today this session is there for ACF exam. Recently, GPSC has published the vacancies and the examination schedule for the ACF exam, which stands for Assistant Conservator of Forest, right? It is a class 2 exam. And today we are having Ashray Naik sir, who has appeared twice into Indian Forest Service interview. And he has a very good grasp on the particular subject, and particularly in prelims he has really scored good mark. Now if you know, Indian Forest Service has lower vacancies than the IAS and other services, but still sir has managed to appear to the interview. So he is having a really good grasp on the subject. Sir is non-Gujarati, so we need to communicate either in English or Hindi with him. And after that, I'll be giving you the other guidelines. So what sir is doing, sir is going to give you the specific information regarding the environment subject, which is very, very important, environment and forest subject, which is very, very important and crucial to pass this examination. Now, a very, very similar examination, which is RFO, has happened last year, and RFO has had a as high as cutoff like 152 for general male. So this examination is just for the 38 vacancies, and we are expecting really very, very high cutoff. Okay. So in this initiative, what we are going to do is we are going to make you guys ready to pass that particular cutoff. Okay, the other information regarding this initiative will be given later. Now I would like to pass on to Ashray Naik sir for the particular subject environment and forest. He is going to give you very, very nice insights and how you can prepare yourself, and he has a very, very good grasp on the prelims. And our first target is prelims, which we are expecting somewhere around 25th September. Yes. So please, I'll invite now sir to take over. Sir, Ashray sir. Okay, thank you, ma'am. Okay, out of 50 questions that what we appeared in the question paper, only actually 20 questions came from the book actually. So what we'll do is today's session, what about this 30 question? How we can answer these questions without our knowledge? That is the key to the success of clearing any prelims examination. So there will be most of the question, at least some out of 400, at least some 150 to 200 question, you will be having no idea at all. But still you have to solve the question. This session, what I will do is, I'll take some of the questions, I'll give you some tips to you, so you can analyze those questions and make sure that you will answer that question in the successive question. When I ask the question, you okay. कभी कभी ऐसा होता है ना, तो मैं 10 क्वेश्चन एनालाइज करूंगा आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी है ना वो जो एनालिसिस के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं. आई विल शेयरिंग द स्क्रीन नाउ. आई विल टेक सम जनरल 10 क्वेश्चंस. आई विल गिव सम टिप्स बेस्ड ऑन दैट वी कैन, उससे हिसाब से हम आरसीएफ का क्वेश्चन पेपर विदाउट नॉलेज सॉल्व करेंगे. ओके, आई एम क्लियर? I'm sharing the screen now. देखना, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन का टिप्स है ना, मैं एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ही दे सकता हूँ. अभी मैं जनरल क्वेश्चन भी देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कैसा सॉल्व अप्रोच कैसा करना है, उसके हिसाब से हम एनवायरनमेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं. आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? हेलो, can somebody Yes. reply? Is it? Yes, sir. Okay, Yes. okay. Yes. Okay, I will read the first question. Listen it carefully. With reference to the book Deshar Katha, it's a book written by some guy called Saksham Ganesh Deshukar during the freedom struggle. Consider the following questions.
मोस्ट ऑफ द पीपल, हमको ये पता नहीं है कि ये बुक कौन सा है, ये ऑथर के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन हमें आंसर करना पड़ेगा। इसको अप्रोच कैसे करता है मैं बताता हूँ। देखना, अब ये देखना कैसा दिया हुआ है। इट इज वांटेड टू अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट ऑफ हिप्नोटिक समथिंग ही दिया हुआ है, हमें पता नहीं है क्या दिया है। वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट का बारे में कुछ दिया हुआ है। इट इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले को इंस्पायर किया है। द यूज ऑफ देश बाय दिस ऑथर रेफर्स टू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ बंगाल दिया हुआ है। देखना, अगर आपको नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, सोच लो आपको पता नहीं है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखना, एक सिंपल का टिप्स है ना, कभी भी है ना, कोई भी प्लेस में आपका किसी को ऑथर का नाम दिया हुआ है और किसी का आदमी का नाम दिया हुआ है, ये देखना वो कहाँ से आ सकता है। देखना, गणेश देशुकर, वो कर नाम का कहाँ से आ सकते हैं। देखना, दामोदर कर, वीडी सावरकर, जो मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, कर का जगह होता है ना, कर और सरनेम होता है ना, वो मराठी और वो वेस्टर्न इंडिया के हिसाब से होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये दिनेश देश को कोई भी आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो देश लिखा हुआ है ना, देशुकर, इट वाज रिगार्डिंग टू द बंगाल लिया हुआ है। बंगाल का आदमी का कोई का नाम कर का सर से एंड होता है क्या, देशुकर ऐसा नाम नहीं होते। उन लोगों का नाम तो बैनर्जी होता है, मुखर्जी होता है, इस तरफ का नाम होते हैं। ये देशुकर, गणेश देशुकर है ना, ही इज एक्चुअली अ मराठी राइटर। सो द देशुर खता ही रिफर टू बंगाल, तो गलत हो जाएगा। सो आप 3 का एलिमिनेट कर दिया है ना, आपका आसान से आपका आंसर 1 2 मिल जाएगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. Sir, these Okay. questions are from which exam? It's mixed actually. Some question from UPSC, some question of आंध्रा ACF है ना, यहाँ पे भी कोई टेस्ट आंध्र प्रदेश का ACF एग्जाम चल रहा है, मैं दोनों का मिक्स हुआ है एक्चुअली। Okay, okay, sir. अब देखना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई आंसर करने का ट्राई करिए। देखना, अभी हमें नाम भी नहीं दिया हुआ है। एक बुक का नाम दिया हुआ है, देशर कथा। इट वाज रिटन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमें पता है कि थर्ड ऑप्शन गलत है, अभी ये बंगाल के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है। अगर नाम भी नहीं दिया तो कोई प्रूव कर सकता है क्या थर्ड गलत है बोल के? कैन एनीवन आंसर? ठीक है, इतना ही रखना है, इतना प्रूव करना है कि देश और कथा है ये बुक के, इट वाज रिटन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में लिखा हुआ है। इससे इतना ही नॉलेज है, हमें एक थर्ड स्टेटमेंट गलत मतलब फाइंड आउट करना है। कोई कर सकते हैं क्या? ओके, मैं ही बोल देता हूँ। देखना, अभी देखना यहाँ पे क्या हुआ है, देश और कथा, इट इज अ बुक रिटन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ थर्ड में देश का मतलब बंगाल दिया हुआ है। अब देखना, गुजरात ही समझ लो, आप गुजरात में रहते हैं। अब देखना, एशियंट टाइम में होगा, एशियंट टाइम में लिखा होगा तो बुक, वहां पे एशियन पोएम में गुजरात मेरा ख्याल से राजपूत लोग रूल करते थे, मुझे पता नहीं कौन रूल करते थे। वहां पे है ना, एशियंट टाइम का देश का मतलब होता है, क्या होता है, राजपूत देश, वही एक देश होता था, है ना। अब देखना, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, बुक लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में। अगर फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में बुक दिया हुआ है, देश का मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के, अभी राजपूतान और कोई स्टेट का देश नहीं बोलेंगे हम देश क्या हो जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में आ चुके हैं ना हम लोग। वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ देश रिस्पेक्टिंग टू बंगाल इज ओवर। नाउ देश हैज कम टू इंडिया एज ए देश। देश चेंज हो जाएगा, देश का मीनिंग बढ़ जाएगा, फ्रीडम स्ट्रगल के बंगाल नहीं होगा, और कोई भी मराठी लिखा होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा उसका देश। उसका देश फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में ना पूरा हिंदुस्तान उसका देश बहेगा और इंडिया पूरा देश रहेगा। तो ऐसे ही करके हम तीसरा स्टेटमेंट को रॉन्ग बोल सकते हैं। अगर सेम क्वेश्चन वाज नॉट गिवन फ्रीडम स्ट्रगल, तब देश का हिसाब से कोई अगर एंशियंट इंडिया में बुक लिखा होगा, तब हम लोग को पता नहीं चलेगा कि देश बंगाल भी हो सकता है और महाराष्ट्र भी हो सकता है या गुजरात भी हो सकता है। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल को वो दिया हुआ है, कोई आंसर मतलब वहां डायरेक्टली दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल का देश का मतलब कोई स्टेट नहीं है। तो आपको इसके हिसाब से ये आंसर को आंसर करना पड़ेगा। मतलब आपको जब भी पता भी नहीं होगा ना, तब ये सोचना कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसी को हमें लेकर हमको आंसर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हेलो, क्या somebody reply? Okay, thank you.
अब देखना एक ऐसा देखना, मैं 2-3 यूपीएससी का क्वेश्चन करूंगा, बाद में एसीएफ को जाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है ना वो आरसीएफ का दिया हुआ है। आरसीएफ से क्वेश्चन जो है ना थोड़ा तो सोचो इजी होता है। अगर तुम नेक्स्ट लेवल के आप एसीएफ में, गुजरात के एसीएफ में पढ़ोगे ना, क्वेश्चन इतना डायरेक्ट नहीं आएगा। कोई भी आपका दूसरा स्टेट का आप एसीएफ का टेस्ट पेपर, आरसीएफ का टेस्ट पेपर लेना, वो लेवल बढ़ जाएगा। तो हम आरसीएफ का क्वेश्चन को लेवल मान, उससे तो थोड़ा ऊपर हायर लेवल टफ ही आएगा। तो इसलिए कि ज्यादा यूपीएस के इसके लिए रेफरेंस क्वेश्चन वो जो लिया है ना आरसीएफ का, वो थोड़ा इजी है। तो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन होता है। देखना एनवायरमेंटल में क्वेश्चन है ना, कभी भी एक एनवायरमेंटल स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो थोड़ा गलत हो सकता है। क्योंकि ये देखना, अब देखना कोई गुजरात में कोई ट्री है, ये ट्री कर्नाटक में नहीं होता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया ना, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट में सब कुछ पॉसिबल होता है यूजुअली। तो इसके हिसाब से उतना ही नॉलेज रहने से हम इस तरफ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो देखना एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, देखना ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, उतना पता है दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं है हमें, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट भी हो सकते हैं। देखना एक सेकेंड स्टेटमेंट है ना, एक पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ऐसा नहीं है एब्सोल्युटली कभी भी बोलेगा ना, वो स्टेटमेंट यूजुअली गलत हो सकता है। क्योंकि एनवायरमेंट में ऐसा नहीं है कि जब कोई है ही नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है ना यूजुअली गलत होता है यूजुअली। अब देखना, और एसीएफ का एक क्वेश्चन आया था, 1 सेकंड। हाँ देखो 115 एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, 115 वाला। हेलो, ये 150 वाला क्वेश्चन, 115 का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं क्या? मतलब डिस्प्ले हो रहा है ना क्लियर से? Yes. Okay, sir. We can see it. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। देखना ये कोई क्वेश्चन आया था आरसीएफ में, ये थोड़ा आसान था, बट लेकिन एसीएफ में टफ होगा। इसमें दिया हुआ का डिसीज कॉजिंग एजेंट इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक कॉर्प, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब इसका कोई हो सकता है। और एक थर्ड स्टेटमेंट, इतना ही पढ़ना, थर्ड स्टेटमेंट वाटर सोल्यूबल रेडियो आइसोटोप डोंट, ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, कभी भी आप नेगेटिव स्टेटमेंट पे कोई एनवायरमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा, वो थोड़ा गलत होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि देखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है ना, वो नहीं हो सकता है, ऐसा स्टेटमेंट बहुत मुश्किल से करेक्ट होगा। और अगर एब्सोल्युटली नहीं पता है तो वो क्वेश्चन तुम आप गलत मान सकते हो। अब देखना, अब और क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखना ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो, स्टील स्लैग कोई मटेरियल है, ये कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम? पहला आंसर, पहला था कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्ट ऑफ द सीमेंट। ये इतना ही है, कोई चीज को हम ये नहीं बोल सकते कि वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इतना एप्लीकेशन होता है कोई एनवायरमेंट में और सेंटी में, वो एप्लीकेशन इतना होता है ना, आप ऐसा जनरल में कहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। कोई यहाँ पे 3 के जगह 10 ऑप्शन भी दे देगा ना, तभी भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबव आंसर होते हैं। क्योंकि कोई भी अगर बोल दिया, अगर जीपीएस पे कोई बोल दिया स्टील स्ट्रगल यहाँ पे यूज नहीं कर सकता है, और कोई भी यहाँ पे देश का, कोई भी वर्ल्ड में इतना जगह है, कोई पे यूज करता ही होगा, और कोई क्वेश्चन डालेगा, ऐसा ये सब चलता रहेगा। सो कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट कोई टच नहीं करता है। कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी चीज हो, और नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, हमेशा मोस्ट ऑफ द केस गलत होता है। तो आप कोई भी, तो कोई भी स्टेटमेंट है, कोई जनरल स्टेटमेंट है, इसका हम अज्यूम करना है कि आपको पता नहीं है तो अज्यूम करना है कि वो सही है। और इस तरफ का क्वेश्चन है ना, एसीएफ के हर बार आता ही रहता है। देखना एक बहुत बार आ चुका है। ये देखना, ये क्वेश्चन भी उसी तरफ का क्वेश्चन है। सम ऑफ द टर्टल्स, सम ऑफ द, 1 सेकंड, सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बिवर्स, बोल रहे हैं कि
सम ऑफ द स्पीसीज आर हर्बिवोरस है, थोड़ा स्पीसीज हर्बिवोरस हो सकता है, सम ऑफ द स्पीसीज फिश आर हर्बिवोरस। ये देखा, वो जानबूझ के वो सम दिया है क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। वो इस तरफ का स्टेटमेंट होता है ना, कई नेगेटिव स्टेटमेंट वो खुद ही अवॉइड करता है कि देना, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट अगर दे दिया ना, वो करेक्ट होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट में पॉसिबिलिटी बहुत ऐड होता है, क्योंकि इंडिया है, वर्ल्ड है, कोई भी एक जगह में है ना, ऐसा एनवायरमेंट हो ही जाते हैं, करेक्ट ही हो जाते हैं। तो आपको एनवायरमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी आएगा, आपको पता नहीं है ना, आप एनवायरमेंटल में थोड़ा ब्रॉड में सोचिए, ये हो सकता है, ऐसा माइंडसेट में जाइए कि ये होना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए है ना, आप सोचिए, आपको पता नहीं है कोई भी आंसर, आप मान लीजिए वो करेक्ट हो सकता है। अब देखना, आपको कॉमन सेंस भी बहुत यूज करना होता है। आपको एसीएफ में एक क्वेश्चन आया था, अब देखना इसको भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स टेक्निक यूज्ड इन वाइल्ड लाइफ स्टडीज। आपको नहीं पता है ना, ब्रॉड सेंस थिंक कीजिए हमेशा, है ना, जो ऑल ऑफ एनवायरमेंट में है ना, थोड़ा रेडियो टेलीमेट्री, कैमरा ट्रैपिंग कहीं ना कहीं तो यूज कर ही सकता है। वाइल्ड लाइफ स्टडीज तो बहुत बड़ा है, पूरी इंडिया में होता है, वहां पे होता है, कोई बहुत कंट्री डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्टडी करता रहता है। ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा वाइल्ड लाइफ स्टडी बहुत फार फ्लरिश है, कहीं ना कहीं तो यूज आ ही जाएगा। तो कभी भी एनवायरमेंट में कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना, आप कभी भी नैरो माइंडली मत सोचना। अगर तुमको एब्सोल्युटली पता है ये नहीं यूज करेगा, तभी कोई किसी को एलिमिनेट करना। आपको नहीं पता है तब तो आप विदाउट ज्यादा पता नहीं है तो इतना अज्यूम कर लेना कि वो सही होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल में ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये होता है कि वो सही होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। और देखना, एक और क्वेश्चन आया था, हाँ, आप ये क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं पता होगा। एक क्वेश्चन था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से, इसके लिए हम तो जोर से मतलब ये क्या है वो तो पता होता है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये होता है कि along with the forest bureaucracy, even tribal people will include in the management of the forest. That's the simple thing. Joint forest management of India, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये किस जगह से ओरिजिनेट हुआ है। देखना, आप आपको ये यूजुअली है ना, जो बुक में भी नहीं मिलेगा, कोई देखना, थोड़ा कोई फॉरेस्ट डिवीजन में कोई मतलब कोई एक बड़ा स्टेट में उसका फॉरेस्ट डिवीजन में वो स्टार्ट किया है, तो हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें पता नहीं है कि कांकर फॉरेस्ट डिवीजन छत्तीसगढ़ में है या ये क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता है ना, फिर भी हमें थोड़ा सा तो कुछ तो थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आप है ना बहुत मतलब ये एनालिसिस स्किल होता है ना, एक दिन में डेवलप नहीं होते, आप करते रहोगे वाइड रेंज ऑफ थिंक करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली नहीं भी पता है ना, कुछ तो सोच ही लेंगे। अब ये देखना, मुझे भी नहीं पता था इसका आंसर, मैं वेस्ट बंगाल है इसलिए बोल रहा हूँ। देखना, आप किसी से अभी वेस्ट बंगाल में है ना, तृणमूल कांग्रेस रूल कर रहा है, कोई बता सकते हैं उसके पहले कौन सा पार्टी डोमिनेट करता था वेस्ट बंगाल में? ओके, पार्टी, विच वन? कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी, सही कहा आपने कम्युनिस्ट पार्टी कहा है ना। देखना, ये जॉइंट फॉरेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें वो थोड़ा एनालाइज करना है इसलिए बोल रहा हूँ। देखना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रूल करती थी, इतना पता है ना आपको। देखना, वो हमेशा ये लेफ्टिस्ट पार्टी होते हैं ना, वो ट्राइबल्स के लिए हेल्प करने के लिए हेल्प करते हैं, ऑलवेज देयर पॉलिसीज विल बी टुवर्ड्स द हेल्पिंग द ट्राइबल्स, दैट काइंड ऑफ पॉलिसी दे विल टेक। सो व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, इतना पता है ना आपको, इसके हिसाब से पता होगा कि वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी था, वो पॉसिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी वे स्टार्ट कर सकता है। मतलब ये इतना नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एब्सोल्युटली में ये करेक्टिव हो जाएगा, मैं इतना बोल रहा हूँ, आपको कभी आंसर नहीं पता है ना, जो वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी आप थिंक करना। आप मुझे क्या पता है, मुझे छत्तीसगढ़ में कभी कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं था, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ट्राइबल तो सब जगह पे है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इतना भी आसान तो नहीं दिया हुआ है, ट्राइबल तो सब जगह पे है। लेकिन ये पता है ट्राइबल को हेल्प कौन किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो नहीं था, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था। ऐसा मतलब कोई भी है ना, आपको ये नहीं है कि अभी कोई भी पता भी नहीं है, आप इनडायरेक्टली मतलब थोड़ा क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करना है। आप ये मत सोचना आप पढ़ते रहेंगे मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है आपका।
और लो लेवल का एग्जाम तो हो सकता है, तभी तो आपको ग्रेड का एसीएफ का एग्जाम तो वो तो आपको बुक से तो नहीं आने वाला है। आप है ना थोड़ा एनालिसिस है ना वो सीखना ही पड़ेगा आपको। आप जो ज्यादा एनालिसिस करते रहोगे ना, आपको ये पहला ही टाइम थोड़ा गजब लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा करते रहोगे ना, वो आसान से हो जाएगा। मतलब इतना भी नहीं होगा, इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करता रहेगा ना, वो एनालिसिस स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। विदाउट एनालिसिस आप कोई भी एग्जाम नहीं इतना आसान से प्रूव नहीं कर सकते। देखना ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ना, देखना क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, रिसेंटली ग्रोइंग अवेयरनेस से कोई सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एसीएफ आपका गुजरात का आरसीएफ में भी आया हुआ था। एक कोई स्पीशीज का नाम दिया हुआ है, हिमालयन नेटल है, कोई साइंटिफिक नाम लिया हुआ है गिरांटिकस, कोई पता नहीं, हमको पढ़ने भी नहीं इतना भी नहीं होगा, कोई डाइवर्सिफोलिया कुछ है। Found he is saying because it is found to be a sustainable source of, ये दिया हुआ है कि कोई स्पीशीज है वो हिमालय में मिलता है, इतना तो पता है हिमालय में मिलता है, और ये सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, ये कोई चीज का सस्टेनेबल फोर्स से। He's saying like it is a sustainable सोर्स ऑफ समथिंग, इतना ही पता है ना, हिमालय में मिलता है कोई चीज, कोई पेड़, और ये कोई चीज है जो सस्टेनेबली किसी को रिप्लेस कर सकता है, इतना ही है क्वेश्चन। जो हमें ये देखना है कि देखना एंटी मलेरियल ड्रग का कितना वॉल्यूम चाहिए हमें, एक ट्री करेगा तो ये पूरा इंडिया में ड्रग तो हो जाएगा, उतना हो जाएगा। देखना पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री को कभी हमें इतना सस्टेनेबल, अभी देखना जो पेट्रोल को रिप्लेस करने के कितना एफर्ट हो रहा है हम लोगों का, सोलर इंडस्ट्री हो रहा है, विंड इंडस्ट्री हो रहा है, आपको गुजरात में टाइडल एनर्जी, जो भी सस्टेनेबल हो सकता है ना, हम सबसे ढूंढ रहे हैं। देखो टेक्सटाइल फाइबर के लिए हमें कोई अभी इतना थोड़ा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है कि हम सस्टेनेबल सोर्स ढूंढो, पेपर इंडस्ट्री में कहाँ पे उतना ये नहीं हो रहा है कि सस्टेनेबल सोर्स चाहिए, लेकिन हमें पता है कि बायोडीजल रिप्लेस करने के लिए, बायोडीजल मतलब पेट्रोल डीजल के लिए ना, पूरा इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सस्टेनेबल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं लोग। तो सस्टेनेबल सोर्स चाहिए हमें, ड्रग के लिए नहीं, पेपर के लिए नहीं, टेक्सटाइल के लिए नहीं, हमें सस्टेनेबल सोर्स चाहिए बायोडीजल के लिए, है ना। क्वेश्चन में है ना ऐसा सोचना है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक ही पार्ट में कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करने का है। मतलब हमें हिमालयन नेटल है, हमें तो पता नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई और चीज भी दिया होगा, तुम्हें क्लू तो दिया होगा वो आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही सस्टेनेबल सोर्स तो नहीं दिया हुआ है, वो जानबूझ के देता है कि आपको बिना क्वेश्चन आंसर पता भी नहीं होगा तभी भी आप आंसर करना पड़ेगा। वो सस्टेनेबल सोर्स जानबूझ के दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो रेंडमली दे दिया है। सो इसलिए आप इसको फाइंड आउट कर सके कि बायोडीजल कर सकते हैं। समझ में आ रहे होगा? यस। हाँ ओके थैंक यू मैम। आप देखना अभी एक क्वेश्चन दिया था आपका एसीएफ में कोई, हाँ ये क्वेश्चन भी लिख सकते थे। देखना जब भी है ना ये फुल फॉर्म किसी का शॉर्ट फॉर्म है ना, ये 100% आपका एसीएफ का 145 क्वेश्चन था ना, इस तरफ का क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, एसीएफ में भी आते हैं, ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन होता है। आपका बुक में तो नहीं दिया होगा, कोई फर्क नहीं है, ये दिया हुआ है कंपास एस्टैब्लिश नेटवर्क डील्स विद, ये देखना यहाँ पे देखना ना कंपनसेटरी अफॉर्डेज CA से स्टार्ट हो जाएगा, CAMPS, इसमें तो हो नहीं हो रहा है, CBM कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखना यहीं पे मिल जाएगा आपको, कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग फेडरेशन मॉनिटरिंग, एंड यहाँ पे कंपा तो हो रहा है, तो कोई भी फुल फॉर्म कोई देख लेना। अब यहीं पे भी कोई स्प्लिट कर देना, ये तो बहुत आसान दिया हुआ है। अगर आसान भी नहीं भी दिया होगा ना कोई भी फुल फॉर्म, आप छोड़ के मत आ जाइए ना, आपको कितना भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर देना, वो मिल जाएगा। इतना भी देखना क्वेश्चन ओशन कंपास वो तो हो ही जाएगा, ये तो इतना आसान दे रहे हैं, लेकिन आसान भी नहीं भी आएगा ना, इस तरफ क्वेश्चन वहीं पे आप ढूंढ लेना कि आंसर मिल ही जाएगा आपको। ये भी देखना 150 वाला क्वेश्चन में इसलिए डाला हूँ, ये सब तो यूपीएस का पीवाईक्यू है, ये तो 2017 में के यूपीएस में पूछ चुका था, वो लोग ऐसे ही फिर से उसी को कॉपी कर दिया है। ये भी 170 क्वेश्चन में इसलिए डाला हूँ कि ये क्वेश्चन तो यूपीएससी का पीवाईक्यू है, इसलिए डाला हुआ है। देखना अभी देखना 143 आपको गुजरात वाला क्वेश्चन है, ये
आपको पता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि किस तरफ को गुजरात में नहीं मिलता है। देखना, आपको पता है गुजरात तो ड्राई एरिया है बहुत, वो सौराष्ट्र एग्जैक्ट नेम तो मुझे नहीं मालूम, ड्राई एरिया तो है ही है गुजरात में, वो राजस्थान का डेजर्ट तो थोड़ा एक्सटेंड तो हो ही जाएगा। लिटोरल मतलब ये होता है कि ओशियन के बगल में फॉरेस्ट होते हैं ना, उसको लिटोरल। तो आपको इंग्लिश में नहीं पड़ेगा ना, आप गुजरात में पढ़ लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा, नहीं पता है तो। अब देख नहीं पता हो, इतना तो पता होना चाहिए, इतना नहीं समझ में आ जाएगा ना, इतना। ये यूफोरबिया का मतलब मुझे भी नहीं पता है। और स्क्रब का मीनिंग फॉरेस्ट होता है, और थोड़ा लेस रेनफॉल होता है, वहां पे स्क्रब हो जाते हैं, वो तो एनवायरमेंट पे पढ़ते हैं। हेलो, ओके। जब मिला वो साल फॉरेस्ट होता है, एक्चुअली मॉइस्ट साल फॉरेस्ट तो हिमालय या उस तरफ में होता है। वो तो ये आपका नॉलेज के हिसाब से और थोड़ा सा एनालिसिस करके कर सकते हैं, और थोड़ा क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे कि आपके समझ में आ जाए कि एनालिसिस करना क्या होता है। ये देखना, एक क्वेश्चन आया था कि एक सोलार पंप के बारे में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे दिया हुआ है कि सोलार पावर कैन बी यूज्ड इन रनिंग द पंप्स। ओके, सोलार पावर का वो पंप होता है ना, सरफेस पंप में यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। ये देखना, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, और फिर से वो सेकंड स्टेटमेंट देना, सोलार पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट वन विद द पिस्टन। कोई मतलब इसके वो नॉट गेट होते हैं ना, वो नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है। कभी भी आप पता नहीं है ना, मैं इतना बोल सकता हूँ, आप कभी भी पता नहीं बोल सकते। वाटर पी कभी भी आपको पता नहीं है ना, कोई भी स्टेटमेंट हो, एनवायरमेंट में हो, एसएनटी में, एसएनटी और एनवायरमेंट में है ना, वो एप्लीकेशन किसी का भी हो, कोई भी चीज हो, वो पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए है ना, कभी भी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट पता नहीं चल रहा है ना, वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर दोनों गलत है, एक्चुअली डी आंसर हुआ है। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। मस्क डियर नहीं, इसे छोड़, मैं वो एक्सप्लेन करना थोड़ा ये हो जाएगा। हाँ, ये भी देखना, ये स्पीसीज के बारे में दिया है, स्पीसीज के बारे में हमेशा एनवायरमेंट में आ ही जाएगा, वो तो एसीएफ में तो पक्का आ ही जाएगा, वो तो मैं बाद में पढ़ा लूंगा। आपको पता नहीं है तो कैसा एनालिसिस करना है, ये इसका इम्पोर्टेंस है कि पता है तो कुछ कोई यूज नहीं होगा। ये देखना, ब्लू फिन्ड मशीर दिया हुआ है, कोई नाम का दिया है ब्लू फिन्ड मशीर, मैं पता नहीं है कवेरी में है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। देखना, रस्टी स्पॉटेड कट ईस्टर्न घाट्स में देता, पता नहीं है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। अब देखना, इरावाडी डॉल्फिन दिया हुआ है, आपको पता है कि इरावाडी कहाँ पे है? इरावाडी एक रिवर होता है एक्चुअली, आपको भी थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इरावाडी होता है, और इंडिया के उस तरफ में म्यांमार और एशियन कंट्रीज होता है, यहाँ पे म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, वहां पे होता है। तो उसके हिसाब से आपको नहीं भी पता है तो नो, अब वो तो इरावाडी के डॉल्फिन नाम से ही पता दिया हुआ है कि वो चंबल में तो नहीं होगा। अगर इंडिया में मिल भी जाएगा ना, वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, ईस्टर्न में मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये चंबल इस तरफ में मिलेगा। और ये भी देखना ना, डॉल्फिन है ये, इंडिया में रिवर डॉल्फिन है ना, बस गांजेस डॉल्फिन है, और इरावाडी डॉल्फिन है वो इंडिया में तो नहीं है। डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन जो मिला है वो बस गांजेस डॉल्फिन है। तो दो इसकी तरफ से आप दो का एलिमिनेट कर सकते हो, उसका आंसर था 1 and 3। जो आपको नहीं भी पता है ना, थोड़ा एनालिसिस करो कि मुझे कुछ ना कुछ तो पता है। डॉल्फिन है, ओके, गांजेस डॉल्फिन इंडिया में है, वो तो अपना नेशन का कोई एनिमल है, रिवरइन एनिमल है। तो की डॉल्फिन इंडिया में मिलता है वो है, और गांजेस इंडस डॉल्फिन मिलता है। तो इरावाडी डॉल्फिन तो कभी मिल सुना नहीं हो, उसी तरफ भी एलिमिनेट कर सकते, नहीं पता तो आपको इरावाडी रिवर कहाँ पे है वहां पे हो सकते हैं, क्योंकि ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया में मिल सकते हैं, मिला तो ईस्टर्न साइड को मिल सकता है, क्योंकि इरावाडी रिवर है उस तरफ के, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के तरफ के और एशियन कंट्री की तरफ है। ऐसा नहीं कि चंबल में पूरा यहाँ पे तो नहीं मिलेगा,
तो इसकी तरह से आप एनालिसिस करो क्वेश्चन को। कभी भी क्वेश्चन को पता नहीं है ना, इतना सोच लो मुझे कुछ ना कुछ तो पता है। आपको ना थोड़ा बेसिक्स ही पढ़ के जाऊंगा ना कुछ तो उसके बारे में पता ही होगा। तो आपको एसीएफ में प्रीलिम्स के इसका ये इम्पोर्टेंस ये है कि देखना, एक 200 कितना 400 क्वेश्चंस होता है कि 400 क्वेश्चंस होता है। आपको 150 से ज्यादा क्वेश्चन किसी को पता भी नहीं होता है। और जो क्वेश्चंस नहीं पता है ना, कंपटीशन उसी में होता है। कंपटीशन फर्स्ट 150 क्वेश्चन में कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो तो सभी 150 क्वेश्चन कर ही लेंगे। जो मिलेगा ना बचा हुआ 250 क्वेश्चन है ना, कंपटीशन उसी में होता है। तो आपको ये करना है कि आपको वो जो नहीं पता है उसमें ज्यादा से मार्क्स को गेन करना है। वो अपने नॉलेज ज्यादा पढ़ने से उतना हेल्प नहीं होता है। ज्यादा से पढ़ लिए ऐसा पढ़ने से आप सोच रहे हो कि मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं होगा। क्योंकि जो पढ़ा है वो आपको अप्लाई करना होना चाहिए। अभी एसीएफ में तो आपको इतना आरसीएफ पे इतना आसान भी नहीं है, मैं उससे भी थोड़ा हार्ड ही आएगा। तो आपको ये एनालिसिस स्किल है ना, जो क्वेश्चन के आपको कभी भी पता भी नहीं है वो तभी भी आंसर कर लेना, अब वो आप सॉल्व करते हुए और ऐसे करना है। जो हम अभी क्लास में है ना 5 क्वेश्चन डेली कॉल कर ही लेंगे, कैसे कि वो एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आपके उसके हिसाब से है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जो आप एग्जाम में ऐसा मेंटालिटी में जाने कि मुझे सब कुछ पता है, जब भी पता भी नहीं है मैं एनालिसिस करके निकाल ही दूंगा ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप खुद ही सॉल्व कर लो, मैं बोल दूंगा कैसा है। एक दिन में दिया हुआ है कि माइक्रोबीट्स, कोई माइक्रोबीट्स great, why there is a great concern about the microbits that is released into environment। देखना, एनवायरमेंट को रिलीज किया हुआ है माइक्रोबिट्स को, उसको क्या थ्रेट होता है। मैं थोड़ा 30 सेकंड टाइम लूंगा, आप कोई एनालाइज ट्राई कर सकते हो तो कर लेंगे, बाद में मैं आंसर करूंगा, क्योंकि आप भी थिंक करो कि आंसर क्या हो सकते हैं। ચલો ટ્રાય કરે છે, કોણ કરે છે ટ્રાય આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર? સરે આપણને આગળ શીખવાડ્યું કે કેવી રીતે એલિમિનેટ કરી શકીએ આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ એલિમિનેશન મેથડ દ્વારા. તો તમારામાંથી ટ્રાય કરો. They are considered to cause skin cancer in children. डी पॉसिबली डी होगा। अडल्ट्रेंट्स, ओके आप बोल रहे I guess. ओके It's C, I guess. क्रॉप प्लांट्स, ओके They are small enough Okay. because of my. या दैट्स फाइन। एक्चुअली माइक्रोबिट्स क्या होता Sir, हाँ the answer will be A because it goes to okay oceans. everyone given the all answer as given, that's good। okay, see they are given माइक्रोबिट्स होता है ना, पहले आप फेस वॉश में ये सब होते थे ना, अभी बहुत बैन कर चुका है वो। वहां पे थोड़ा छोटा प्लास्टिक होता था कि वो आपका डेड स्किन निकाल देता था। एक्चुअली लेकिन ये माइक्रोबिट्स कभी भी होता है ना, आपको वो कॉन्सेप्ट ये होता है आप वॉश कर दे तो वो आपके हिसाब से वो ओशियन चला जाता, वहां पे प्रॉब्लम होता था। ये तो कॉन्सेप्ट किसी को पता, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। आपने कोई बोला था कि कैंसर चिल्ड्रंस के होता है और कोई बोला था एडल्ट्रंस को लिए प्रॉब्लम होती है। देखना, आप बस इसी को फोकस कर रहे हो, वही बोल रहा था मैं। जो क्वेश्चन बस माइक्रोबिट्स का नहीं है, वो एनवायरमेंटल भी आपको सोचना है। रिलीज इनटू एनवायरमेंट भी सोचना पड़ेगा। देखना, ये दो तो डी तो यूज एज अ फुल एडल्ट्रेंट्स, तो एनवायरमेंट के हिसाब से क्या मतलब है उसका, वो थोड़ा हेल्थ इश्यू है, और बी भी हेल्थ इश्यू है, और एनवायरमेंटल इश्यू है स्मॉल इनफ टू ऑब्जर्व इन द प्लांट एंड गेट फील्ड। तो ये भी उतना एनवायरमेंटल इंपैक्ट नहीं है कि जो क्वेश्चन का फोकस है एनवायरमेंट है ना, वो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है ना, वो एनवायरमेंट के बारे में ABCD ये बोल रहे हैं ना कि वो ए ज्यादा फोकस किया हुआ है एनवायरमेंट के हिसाब में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप गलत एनालिसिस किया है, मैं बस आप ए एनालिसिस, कोई भी मैम बोली थी को टी की बोली थी whatever, जो आप ये सोचना है जो क्वेश्चन का एक और हिस्सा भी है ना उसको लिंक करके सोचना हमेशा। हम वहीं पे भी वही किए थे ना, वो कोई स्पीसीज का नाम दिया हुआ था सस्टेनेबल सोर्स ऑफ, वहां पे हाँ ये भी हिमालयन नेटल दिया हुआ था ना। इसका क्वेश्चन था, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ था ना, आपको सस्टेनेबल सोर्स चाहिए। सस्टेनेबल सोर्स चाहिए था हमें, किसको इसको सस्टेनेबल सोर्स हमें नहीं ढूंढ रहे थे ना,
हमें ढूंढ रहे थे सस्टेनेबल फ्यूल, हमें इतना तो पता है कि हमेशा वर्ल्ड वाइड दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ सस्टेनेबल सोर्स फॉर बायोडीजल। ये उसमें क्वेश्चन ये चेक नहीं कर रहा था कि आपको हिमालयन नेटन को कहीं सुना आएगा। आप जो क्वेश्चन में दिया है ना पूरा मतलब ये सस्टेनेबल सोर्स ऑफ क्या होते हैं, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन जो दिया है ना सबको यूज करना पड़ेगा। आपको हिमालयन का कभी सुना भी नहीं होगा तभी भी पता है सस्टेनेबल सोर्स दिया हुआ है। ऐसे है ना, इसको क्वेश्चन में है ना, ऐसा नहीं कि आपको बस उसका माइक्रोबिट्स के हिसाब से दिया हुआ है, माइक्रोबिट्स भी दिया होगा, फिर भी आपको पता है ये भी दिया होगा, एनवायरमेंट दिया हुआ है। ये तो हेल्थ का इश्यू बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप थोड़ा तो फोकस करो कि सेकेंड एस्पेक्ट में भी ये देखना। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपका गलत है, वो डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको जब भी पता भी नहीं होगा ना तभी भी आप आंसर करने का टाइम में आ जाएंगे। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाएंगे। 1 सेकंड। हाँ, ये देख रहे हैं ना, एक कोई है विच ऑफ द अबव राव रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ बायोमास। देखना बायोमास में बर्न करने से कौन सा गैस रिलीज होता है ये बोला है। अब देखना हमें तो पता नहीं है कौन सा गैस रिलीज होता है, बट इतना पता है ना हमें, बायोमास इज द वाइडेस्ट थिंग। ये भी ह्यूमन है ना, क्रॉप और बायोमास कोई एनिमल में बर्न किया होगा और कोई भी ट्री को बर्न किया होगा। आप ही बोलिए कितना टाइप का ट्री होगा। बस इंडिया में भी, क्योंकि गुजरात के लिए वेद है ना, गुजरात में भी अभी लाखों तरफ का ट्रीज होगा, अभी इंडिया में तो करोड़ होगा, अभी वर्ल्ड में तो बहुत सारा तरफ का बायोमास ट्रीज का होगा ना। तो कोई ना कोई ट्री है ना कुछ तो रिलीज कर ही देगा। अभी देखना वही बोल रहा था मैं, एनवायरमेंटल में है ना पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट हो जाता है, तो बायोमास कोई ना कोई ट्री कुछ तो क्रिएट होगा। सो आप हमेशा ये एनवायरमेंट में है ना, कोई भी अब देखना आंसर में कोई गलत है कोई बोल दिया ना, वो कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगा क्योंकि कोई ना रिसर्च, कोई ना पार्ट में, कोई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई ना कोई रिसर्च कर दिया तो ये रिलीज हो जाएगा। सो आप हमेशा एनवायरमेंटल में है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा पोल्यूशन क्या रिलीज होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है और कौन सा चीज इस्तेमाल करता है, ये आपको पता नहीं है ना, हमेशा ब्रॉडेस्ट सेंस थिंक करो। और क्वेश्चन यूजुअली 99% ऑफ द टाइम है ना आंसर डी होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल में पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है, एनवायरमेंटल में होगा, एसएनटी में भी होगा, वो पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि वो चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा होगा, वो इसी तरफ का एक और क्वेश्चन था देखना। But sir, how can it be related to all of the options? Because mostly biomass is related to carbon monoxide and methane, na? How can it be related to sulfur dioxide and ozone? मैं वो देखना बायोमास है ना ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन नॉट बायोमास इज नॉट ओनली अबाउट द क्रॉप्स। Yes, every biological body that yes. Okay, got it. आपको बर्न तो अब मैं तो हमारे तो सल्फर हो ही जाता है ना। देखना क्रॉप ऐसा नहीं है कि क्रॉप में बस कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, वो रिलीज हो सकते हैं। देखना हमें नहीं पता होता है, बस हमारा नॉलेज है ना लिमिटेड होता है कि एनवायरमेंट में ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में हम इसलिए ज्यादा सुन रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मीथेन और इसके लिए वो इसलिए ज्यादा फेमस है। जो वो ये सब हम नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी होता है ना बहुत ज्यादा होता है। देखना ओके वन मोर ट्रिक आई विल ट्राई टू गिव। अब देखना मेरा नाम आश्रय है ना, मेरा नाम नाइक है, नाइक सोच लो, आश्रय थोड़ा टफ हो जाएगा आपको। नाइक है ना, देयर इज अ टू स्टेटमेंट, अज्यूम 1 and 2। Nike will clear Nike will clear ACF and Nike will not clear ACF। अगर ऐसा दो चार ऑप्शन है, ऐसा दो ऑप्शन है, देखना एक डेड डिपॉजिट ऑप्शन है ना, will clear it will not clear it। देखना ये डेड डिपॉजिट आंसर कभी भी आएगा ना, वो उसी में एक आंसर होगा, क्योंकि ये तो सही होगा वरना तो ये तो सही होगा। आपको ऑब्जर्व करना है कि कहीं भी डेड डिपॉजिट मिलेगा ना, वो एक में ऑप्शन मिल ही जाएगा आपको। वो एनवायरमेंट में भी आएगा, इकोनॉमी में, और 2-3 क्वेश्चन में बाद में प्रैक्टिस करेंगे कि कैसा ऑपोजिट हो तो एक तो सही हो जाएगा। देखो इसके हिसाब से आप 2 आंसर कोई भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्या। देखना मैं ही बोल देता हूँ, यहाँ पे देखना रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग,
विच ऑफ द प्रिपेयर फॉर एंश्योरिंग, कोई इतना मटेरियल दिया हुआ जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए और रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। इसमें कोई जो चीज है, सम आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, सम आर एनवायरमेंटली नॉट सस्टेनेबल। ओके, अब देखना ये डेड डिपॉजिट है 2 and 4 देखना। कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी। जब ऑपोजिट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ना, यूजुअली वो अलग तरफ का रिप्रेजेंट करता है। एक हॉट है, एक कोल्ड है, यूजुअली टू एनी ऑपोजिट काइंड ऑफ थिंग दे विल रिप्रेजेंट वो होगा ना, एक इस तरफ पड़ता है यूजुअली, एक उस तरफ पड़ता है। तो 2 and 4 हमेशा कभी भी साथ में नहीं जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है ना 2 and, सो ऑप्शन बी तो हमें ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अभी देख लेना कि कोई एनवायरमेंट के लिए कोई हॉट टेक्नोलॉजी है, कोई किसी में भी कोई रोड बना रहे हैं, उसमें कुछ तो हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, कुछ तो हीट ही हो रहा है ना। हॉट का मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर हॉट होता है ना, वो यूजुअली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होते। हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी कोई कुछ नहीं है, वो डांबर होता है ना, उसको गजब नाम के दिया हुआ है बस। हॉट फील्ड एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी मतलब वो डांबर को हीट करके बनाते हैं ना, उसमें बहुत कार्बन रिलीज होगा। इतने हीट करने को हमें तो कार्बन रिलीज होगा, तो 4 में आप तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 4 चला गया ना, 2 बी एंड सी भी चला जाएगा आपका। तो बचा अपना है 1 and 5, 1 2 3 है ना, 1 2 3 बच गया और 1 and 5 है ना, 2 3। अब यू वांट मी टू रिपीट इट? हेलो, नहीं सर, ओके you're ओके fine. You can carry on. ओके। अब देखना, हाँ 4 हो गया, 1 and ए एंड सी हो गया, क्योंकि हॉट जो है वो एनवायरमेंट जनरली फ्रेंडली नहीं होता है। ये थोड़ा कॉमन सेंस है, हम बता दें, कोई भी बता देगा। देखो हॉट नहीं है, कोल्ड तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा, तो 2 होना ही चाहिए। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि डी में ए नहीं है, डी में कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये देखना, ये क्वेश्चन आपको पता भी नहीं है ना, आप थोड़ा सा एनालाइज कर दिएगा ना, हॉट है कोल्ड दिया हुआ है कि ये ऑपोजिट हो जाएगा, आप थोड़ा मेंटली रेडी हो जाएंगे एनालिसिस करने के लिए। जो नहीं भी पता होगा ना, आप इससे हिसाब से एनालिसिस करके आंसर निकल ही जाएंगे। ये स्किल आपको, आप मतलब प्रीलिम्स इतना, कोई किसी को प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाते हैं, उतना लिंक इतना एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। आप इतना मतलब प्रीलिम्स के लिए बॉर्डर में हो और गारंटी नहीं हो प्रीलिम्स हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाले। आपको जो भी आंसर्स है उसको, क्वेश्चन को, एक एंड एवरी क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा। जब भी आप जो देखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर ही होता है बहुत आसान, कोई भी आप मैनेजमेंट कोई भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर लेते हो वो बहुत ही आसान होता है। वो आसान वाले क्वेश्चन से है ना, उससे कोई आपको कोई भी हेल्प भी नहीं होगा। जो पढ़ा हुआ है वो सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, होने वाला है, क्योंकि वो एग्जाम में भी आपका सही ही हो ही जाएगा। जो पता है आप सही ही करके ही आ जाओगे। जो नहीं पता है ना, वो कंपटीशन उसी पे होगा, वो किसी को नहीं पता होगा, उसको आपको पढ़ के, ज्यादा से पढ़ के तो हो ही जाता है। मतलब आपको जब भी पढ़ के भी नहीं होना जाएगा ना, वो आप एनालिसिस स्किल डेवलप करना पड़ेगा, वो आप डेली वर्क करना ही पड़ेगा एनालिसिस स्किल के। कोई भी आप क्वेश्चन पेपर ले लो, जो पता, अभी 10 क्वेश्चन ले लियो, 5 नहीं पता है ना, और 5 क्वेश्चन को आप थिंक करना पड़ेगा। देखना, इस एनालिसिस स्किल ना कोई इंस्टीट्यूट हो जाए, कोई भी आपको बोल नहीं सकता, कोई भी मतलब मैं इतना बोल सकता है ऐसा ऐसा कर सकता है, लेकिन ये एग्जाम में हेल्प नहीं होगा। अनलेस यू ट्राइड इट एंड यू डेवलप दैट स्किल, you are not going to solve the question which you don't know it. When you don't know the question, you still want to solve it, then आप डेली एक 10 या 15 आपके हिसाब से, और 10 और 20-25 क्वेश्चन जो क्वालिटी क्वेश्चन होने चाहिए। जो पता है वो छोड़ देना, वो सबको पता होगा, वो सब करेक्ट करके आ जाएगा। जो नहीं पता है आपको उसको एनालिसिस करके आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। તો સર આપણને બહુ 1 મિનિટ સર, તો સર આપણને બહુ સરસ રીતે આમાં એલિમિનેશન મેથડ સમજાવે છે કે ઇવન ઇફ યુ ડોન્ટ નો ધ એક્ઝેક્ટ આન્સર, કેવી રીતે એલિમિનેશન મેથડ વાપરી અને તમે ઇન્ટેલિજન્ટ ગેસ દ્વારા તમારું જે કટ ઓફ છે એ પાર કરવાના ચાન્સીસ મેક્સિમાઇઝ કરી શકો। તો બધાને ખ્યાલ આવે છે ને? એવરીબડી ઇઝ ગેટિંગ ને સર જે મેથડ થી સમજાવે છે? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am, madam. क्या लाभ? ओके ओके, श्योर सर। सर यू कैन कैरी ऑन। ओके, मैंने बोला था ना, जो डेट डिपॉजिट होता है, देखना ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं।
आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट पता है, आप तो आराम से सॉल्व कर ही देंगे। अब देखना, आपको पता नहीं है, क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज, इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक पता है, वो पूछ रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पता क्या है। अब देखना, मैं थोड़ा टाइम से मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। देखना, वो ऑप्शन बी को पढ़ना, इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, मतलब कोई डेप्ट को है ना, मुझे सर डेप्ट को क्या बोलते हैं, साल आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन डेप्ट, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग फ्लो बोल रहे हैं, मतलब नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, कोई डेप्ट नहीं क्रिएट हो रही है, बोल रहे हैं। अब देखना, कोई म्यूट कर लेगा क्या, कोई अनम्यूट हुआ है? नहीं सर, ओके, थैंक यू। लेट मी जस्ट चेक। ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि इट्स अ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, है ना, और ऑप्शन सी में देखा, ए इन्वेस्ट के लिए डेप्ट सर्विसिंग, डेप्ट सर्विस मतलब क्या होता है, वो इंटरेस्ट भरते हैं ना हम लोग, हम 100 रुपीज दो, 8 रुपीज वो मंथली इंटरेस्ट भरते हैं ना, मंथली ईयरली, और डेप्ट को सर्विस करना बोल रहे हैं। मतलब ऑप्शन बी पे ये उसमें डेप्ट क्रिएट ही नहीं होगा, और ऑप्शन सी में ये बोल रहे हैं आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब है डेप्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना। सो ये बी एंड सी है ना, आपको डेट अपोजिट है, देखो, इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, और इट इज, और सी ऑप्शन से इट इन्वॉल्व्स डेप्ट सर्विसिंग, डेप्ट सर्विसिंग मतलब डेप्ट क्रिएट हुआ है। तो आंसर है ना, इस तरफ का क्वेश्चन में आंसर बी में, सी में एक आंसर पक्का होगा। तो आप तो 50% के तो ले सकते हो, कि यूजुअली है ना, एफडीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे एक कंपनी, देखना कोई कंपनी होगा फॉरेन का, कोई कार कंपनी होगा, मर्सिडीज, या अभी मर्सिडीज कंपनी है, यहाँ पे आपने गुजरात में आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला, उसको बोलता है एफडीआई डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो लोग, हम लोग तो उनको कोई इंटरेस्ट तो नहीं देने वाले। अगर देखना, अगर कोई यहाँ पे लोन दिया, वो दिया, ये दिया, वो सब में हम इंटरेस्ट देना पड़ता है। एफडीआई में तो वो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, उसके लिए एक आंसर होगा नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, पर उसको आपको पता नहीं है तो डेट अपोजिट है, तो ए एंड डी नो तो एलिमिनेट कर सकते हो आप, 50-50 में तो ट्राई तो कर सकते हो। ओके, होप यू गॉट इट। जो आपको समझ में नहीं आएगा तो बोल देना, मुझे पता नहीं चलेगा यहाँ पे। હા શ્યોર, કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં તમને લોકોને એવું લાગે તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ, તમારે But સરને sir, કંઈ પણ પૂછવું. why it's not a D option is ऑप्शन eligible डी, over there? ओके, Yeah. इट इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉरेन, नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो गवर्नमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये होता है ना, वो देखना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है। देखना, आप गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदो बोल को, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी ना। No, yes. Exactly, इंस्टीट्यूशनल but फॉरेन this डायरेक्ट, is FII. Okay. Yeah, good. FII is okay. FII is not same as FDI. Okay, that's also okay. It's different. Okay. अब देखना, हम ये पढ़े थे कि अब देखना, हम ये पढ़े थे कि एनवायरनमेंट पे पॉजिबिलिटी हमेशा ज्यादा होता है, जो हम ट्री में बारे में पढ़े थे, जो रिलीज सब कुछ करते हैं। देखना, एक और क्वेश्चन इसी के हिसाब से दिया हुआ है। देखना, कोल ऐश, मतलब ऐश का मतलब वो बूदी होता है ना, जो बर्न करने के बाद होता है, उसमें होता है आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी होता है। तो देखना, चांसेस बहुत होते हैं, थोड़ा भी मतलब माइन्यूट 0.001% भी होगा ना, तभी भी वो कंसिडर करते होगा ये, मतलब एब्सोल्युटली नहीं होगा, वो मुश्किल हो जाता है। कंटेन आर्सेनिक, लेड मर्क्यूरी, तो 1% भी होगा ना, तभी भी हम अज्यूम करेंगे वो होगा। सो वन चांसेस ऑफ वन बीइंग करेक्ट आर मोस्टली करेक्ट, बिकॉज स्मॉल पॉसिबिलिटी इज इनफाइनाइट, थोड़ा सा तभी होगा ना, 1% होगा ना, तभी भी हो ही जाएगा। तो आपको नहीं पता है तो कंटेन्स आर्सेनिक, ऐसा नहीं थिंक करने के नहीं हो सकता है, हमेशा वाइडली थिंक करने के थोड़ा सा तो हो ही जाएगा। और सेकंड ऑप्शन देखना, कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस द सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोस ऑक्साइड, कोई भी नाइट्रोस ऑफ ऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं ना, वही बोल रहा हूँ ना हम लोग, थोड़ा सा तो कोई ना कुछ तो रिलीज हो ही जाएगा, जो भी कोल में है ना, थोड़ा सा, इतना भी क्वांटिटी, जो ज्यादा से ज्यादा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन 0.11% रिलीज भी होगा ना, तभी भी हम क्या करते हैं, वो रिलीज होगा अज्यूम करते हैं। देखना, 1 and 2 करेक्ट हो ही जाएगा ना, क्योंकि एनवायरमेंट में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम 1-2 को करेक्ट मान लिया ना, तो ऑप्शन ही नहीं है जो डायरेक्टली डी 1, 2, 3
करेक्ट होना पड़ेगा। तो ना एनवायरमेंट में वही टिप्स बोल रहा था कि आप जो एनवायरमेंट का कभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी भी नैरो मत सोचना। अब देखना पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी का तो इतना छोटा सा बुक, कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा बुक है, जो उतना नहीं है वो गलत है। एनवायरमेंट में ऐसा नहीं है ना, कोई बुक के ऐसा कुछ नहीं है। एनवायरमेंट में सोर्स क्या, दो पूरा वर्ल्ड में क्या होगा उतना तो कोई भी किसी को नहीं जानता। कोल एश तो कहीं पे भी कोई को एश तो रिलीज कर ही देगा, वो कोई फिक्स सोर्स नहीं होता है, इसमें ले जाएंगे। इसलिए एनवायरमेंटल में क्वेश्चन है ना बहुत ब्रॉड होते हैं, तभी भी एसएनटी के भी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई तो यूनिवर्सिटी में कोई तो रिसर्च होगा जो प्रूव कर चुका होगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है ना ब्रॉड होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री में सब जो हुआ है वो हुआ है, और नेगेटिव स्टेट में वहां गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। बट पॉसिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड पर्टिकुलरली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना वो गलत होना बहुत बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ही होता है। तो हमेशा तभी भी नहीं पता ना, वो अज्यूम कर लो हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन में वो डायरेक्टली करेक्ट होगा, हाई एश कंटेंट ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। वो क्योंकि दो तरफ का कोल होता है ना, कोकिंग कोल होता है, नॉन कोकिंग कोल होता है। बट हाँ, इंडिया में जो भी ज्यादा मिलता है ना वो नॉन कोकिंग कोल होता है, वो थोड़ा क्वालिटी कम हो जाती है, कि इसलिए एश कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जो इसलिए हम बहुत कोल को इंपोर्ट करते हैं ना, बहुत कंट्रीज, हमारे पास कोल बहुत है बट वो एश कंटेंट बहुत है ना, इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते, वो बहुत एप्लीकेशन लिमिटेड हो सकते हैं। इसलिए कोल शॉर्टेज नहीं है ना। ऐसा नहीं कि इंडिया में कोल शॉर्टेज का बहुत न्यूज आ रहा था ना, जो रशिया वार हो गया, कोल शॉर्टेज हो गया। ऐसा नहीं कि कोल नहीं है इंडिया में, इंडिया में कोल है, लेकिन वो इंडिया में कोल है वो हाई एश कंटेंट का कोल हुए। तो जो इसके हिसाब से आपको थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। जब भी नहीं भी पता है ना, आप इतना सोच लो कि कुछ ना रिलीज हो गया, अपना एलिमिनेशन टेक्निक पे 1 and 2 करेक्ट होकर डी आप लगे सकते हो, ठीक ना। તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો વચ્ચે તમે પૂછજો સરને, કોઈ પણ ક્વેશ્ચન સમજવામાં કે એનો આન્સર સરે કેવી રીતે એલિમિનેટ કર્યો. मैम एनवायरनमेंट में अच्छे से कंटेंट हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज, वो जानना था सर से हमें. देखना एनवायरमेंट में ना जो मार्केट में अवेलेबल बुक है ना, वो मार्केट में अवेलेबल शंकर आईएएस का एक बुक आता है, वो आपको उसको पढ़ने से है ना, जो इजी क्वेश्चन आते हैं ना, जो 50 में क्वेश्चन आएगा ना, वो 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट बुक में आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बुक नहीं आएगा, मतलब एसीएफ में ऐसा देखना, अभी यूपीएससी में देगा ना 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 30 से क्वेश्चन ज्यादा बुक से नहीं आएगा, तो आप कोई भी पढ़ लो नहीं आएगा। लेकिन ये एसीएफ उससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन है ना, वो बुक से आ जाएगा, वो 30% 40% तो बुक से आ जाएगा। आप शंकर बुक फॉलो करेगा ना, उससे आपको 50 क्वेश्चन होगा, आप 20 और 15 to 20 क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली आंसर कर ही सकते हैं। देखना मैं एसीएफ का ये 1 सेकेंड, देखना एसीएफ का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। देखना ये सब है ना क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बुक का दिया हुआ है, मैं शंकर का आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं वो पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, वो डायरेक्टली पेज नंबर हिसाब से अरेंज करके दिखा हुआ है। मैं ये बोलना चाहता था कि देखना 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, वो डायरेक्टली बुक से दिया हुआ है, मैं स्क्रीन कैप्चर भी लगा दिया हूँ, वो पेज ये देखना 48 पेज में इसका आंसर है। और जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन से शंकर आईएएस बुक से आ जाएगा। वो हार्ड कॉपी अच्छा है, आप हार्ड कॉपी रख लो, नहीं है तो मैं आपका ग्रुप में शंकर आईएएस का वो पीडीएफ है वो भेज दूंगा, उससे बेसिक वो मार्केट में अवेलेबल है, इट इज द बेस्ट सोर्स में। આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહ્યું હતું કે many of these ACF ના let's say for example 50 ક્વેશ્ચન આવે છે, તો એમાંથી 20 કે 30 તો તમે ડાયરેક્ટ શંકર આઈએએસ માંથી, આ બહુ એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ મટીરિયલ છે, તમે એમેઝોન પરથી એની હાર્ડ કોપી પણ બાય કરી શકો છો, અધરવાઇઝ પીડીએફ તો તમને અહીંથી શેર કરવામાં આવશે જ. और कुछ पूछना है क्या? यस सर, उसी के कारण क्या है, हमको ये पता चले कि ये जो है वो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो फिर उस पे हम अपना एनालिसिस लगाने का ट्राई करेंगे, फिर कहीं से विजन की या फिर किसी की टेस्ट सीरीज फॉरेस्ट की मिल जाए तो। हाँ, वो आपने देना, वो जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो लोग प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन कंपनी में सब लोग पढ़ के ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाएंगे। जो कंपटीशन में बोल रहा था ना, कंपटीशन जो उसी क्वेश्चन में होगा जो पता नहीं है,
वो आप एनालिसिस स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। देखना आरसीएफ में आप क्लियर सकते थे कि एसीएफ थोड़ा हायर लेवल है ना, जो क्वेश्चन भी है ना थोड़ा इतना डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, तो आप भी अगर हायर लेवल जाएंगे तो क्वेश्चन तो टफ हो ही जाएगा। तब आपको एनालिसिस स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जो हम क्लास के अभी पढ़ाएंगे स्टार्ट करेंगे ना, तो 1 आवर क्लासेस तो 50 मिनट्स हम जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बुक में पढ़ा दूंगा, और 10 मिनट्स तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। वो आप बिना वो एक दिन है ना, वो एक दिन टाइम टेबल में आप पढ़े नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एनालिसिस डेवलप नहीं किया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको प्रीलिम्स का क्लियर में। प्रीलिम्स और मेंस भी वो बाद में देखेंगे। अभी प्रीलिम्स में है ना, आप एनालिसिस डेली एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको पता है वो सॉल्व कर दिया, वो आपको पता है वो सॉल्व कर दिया ना, वो बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, उससे कोई हेल्प नहीं होने वाला है। जो नहीं पता है वो सॉल्व कर रहे हैं, जो नहीं पता है आपको क्या पता है ना, उसी के नॉलेज से अप्लाई करके उसको आप आंसर निकालोगे ना, तभी आपका स्किल डेवलप होगा, तभी आप आसाम से क्लियर कर सकते हैं। સરની વાત સાચી છે, કારણ કે હિયર વી આર ટોકિંગ અબાઉટ વેરી હાઈ કટ ઓફ. આરએફઓ માં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું કે કટ ઓફ ઇઝ રિયલી હાઈ બીકોઝ ઓફ ધ લો વેકેન્સીઝ, અને આમાં બહારના સ્ટેટ વાળા બીકોઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કન્ડક્ટેડ ઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમ, so some non-Gujarati people also will try from the other states. તો એ લોકો જોડે કોમ્પિટિશનમાં રહેવા માટે આપણે આપણી એનાલિટિકલ સ્કિલ જે છે એલિમિનેશન વાળી, કે મેક્સિમમ રિવિઝન કરીને આપણે બુકમાંથી તો આવે એ તો કરવાના જ છે સોલ્વ, પણ આ વસ્તુ પણ આપણે અહીંયા આગળ કરવાનો ટ્રાય કરીશું. સર એવું કહે છે કે આપણે રોજના જે સેશન લઈશું એની અંદર after the session every day 5 to 10 questions we will try to solve using this analytical approach. So that will help you to develop your analytical approach. અને પછી તમે જે કોઈ મોક ટેસ્ટ આપો એમાં તમારે જોવાનું કે તમે ઇન્ટેલિજન્ટ ગેસથી 5 ક્વેશ્ચન ધારો કે એટેમ્પ્ટ કર્યા છે તો એમાંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે, રાઈટ? સો that way you can check that how well you are developing your analytical skill, right sir? Yes ma'am. बीजा कोई क्वेश्चन? हाँ, मेरा हिसाब से अब देखना, मैं अभी आज कुछ पढ़ा तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करो तो टाइम भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो एनालिसिस में जो बेसिक्स बोल रहा था वो बोल दिया हूँ। आपको कुछ बोलना है तो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, नहीं कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एनवायरमेंटल है, कोई भी आप पूछ सकते हो उससे कोई। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ, मैं लास्ट 3 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्या हो रहा है, आरएफओ में से मैं अपीयर हुआ तो 2 मार्क्स से रह गया। उसके पहले डीवाईएसओ में भी यही हुआ और एसटी में भी यही हुआ। बट एवरी टाइम आई थॉट दैट आई हैव इनफ नॉलेज, बट additionally what happened that there is one shortage in just 2 or 3 marks. Yeah, that's because but definitely this session is really very helpful for me to in this elimination method, so thank you for having this session. Ma'am, how can I able to join this batch? Can you please share me the link for that? Yes. Yes. The session, the sir has finished his part. Now I'll be continuing with the remaining session, જેમાં આપણે થોડું એક્ઝામ રિલેટેડ અને બીજા જનરલ સ્ટડીના જે ટોપિક છે, સબ્જેક્ટ છે, એને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવા. તો સરને તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન, કોઈને બિફોર આઈ સ્ટાર્ટ તમારે સરને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય તો પૂછી લો, દેન આઈ વિલ ટેક ઓવર ધ સેશન. અને પછી તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવશે કે ક્યાં તમે આને જોઈન કરી શકો છો, શું ફીસ છે, કેવી રીતે આનું કોર્સ આપણે ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટ કરીશું, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન આઈ વિલ પ્રોવાઈડ યુ. તો આજનો સેશન આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. આ ઇનિશિયેટિવ જે છે એની ફી આપણે રાખેલ છે 4000 રૂપિયા. જે પ્રિલિમ્સનો બધો સિલેબસ તમને પ્રિલિમ્સ સુધી આમાં આસિસ્ટન્ટ આપવામાં આવશે, અને આપણે રોજ આના ક્લાસ લઈશું, જેની અંદર 1.5 કલાકનો ફોરેસ્ટનો ક્લાસ અને 1.5 કલાકનો જીએસનો, આગળ જણાવ્યું તેમ. અને ફી કમ્પેરેટિવલી બહુ ઓછી છે,
ટેલિગ્રામની ઉપર આખું ઇનિશિયેટિવ હેન્ડલ થશે અને જે કોઈ મિત્રોએ આમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે GPSC_buddy ઉપર ટેલિગ્રામની અંદર કોન્ટેક્ટ કરવા વિનંતી. તમને આની લિંક જે છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જોવા મળશે. તો આપણે આની 4000 ફી રાખેલ છે અને ઇન્ટરેસ્ટેડ મિત્રોએ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર જણાવેલી લિંક પર સંપર્ક કરવો. થેન્ક યુ.